गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सुजय रहा हूँ और आज के लिए मैं लाइक ए वैगबॉन्ड टीचर हूँ। तो आई एम हियर टू टीच एंड एज वेल एज लर्न फ्रॉम यू पीपल। So I hope I get cooperation from you guys. Let's start from the beginning. जो मशीन लर्निंग होता है, मशीन लर्निंग किस बेसिस पे काम करता है? 2 साल में तो हम लोगों ने बहुत बात की है मशीन लर्निंग के बारे में। तो मशीन लर्निंग किस बेसिस पे काम करता है? It actually works on comparisons between the test cases and trial cases. We train that model, we train a little child, and thereafter he gives us the output or the results. In this way it works. हम लोग मशीन लर्निंग के लिए हम लोग के पास कुछ बेसिक्स लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे हमारे पास है numpy, pandas, matplotlib, seaborn, sklearn, datasets, etc. एक एक करके समझते हैं इनको। तो numpy होता है, सर ने जैसे बताया था हमें, this is a completely array based library. It's built on C++. जो numpy होता है हमारा, it is a library made in Python with the help of C++. It deals with arrays. NumPy means arrays. And now coming to pandas, it is for data frames. What is data frame? Just tables. Tables मतलब कोई भी information objects, just like this. This is an example of a CSV file which we have imported here in the form of a data frame. This is a data frame. Okay. So यहाँ पे हम लोग ऊपर देख सकते हैं कुछ words लिखे हुए हैं, जैसे matplotlib. This is for plotting graphs, for getting information visually, for the layman to understand. सभी लोग समझ सकते हैं इस ग्राफ को देख के, not only computer engineers. Seaborn, an upgraded version of matplotlib. sklearn और datasets. जो sklearn है हमारा, this is a machine learning society, and machine learning society provides us some inbuilt datasets. Inbuilt datasets like Iris dataset, Boston dataset, and California dataset. अब हम लोग बात करेंगे इन दोनों के बारे में। Actually ये datasets अभी भी हमारे पास sklearn में available है, but it doesn't work. Let me give you an example. Why? जो Boston housing का dataset है, this is revoked by the sklearn society because of ethical reasons. And Fetch California housing, इसका इश्यू है कि ये सर्वर्स कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हम लोग अनफॉर्चुनेटली इन दोनों को यूज नहीं कर सकते अभी के लिए, तो हम लोग इसे कमेंट आउट कर देंगे और हम लोग इस चीज को रन करेंगे। दिस मींस ऑल दिस लाइब्रेरीज आर ऑलरेडी इंपोर्टेड एंड वी कमेंट दीज आउट एज वेल। सो हाँ, यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे कि pd.set ऑप्शन, why is this line here? Because sometimes जब हम लोग head data frame डॉट हेड प्रिंट करते हैं तो उसका इश्यू क्या आता है, जो हमारा डाटा फ्रेम डॉट हेड वाला फंक्शन होता है वो हम लोग का कुछ ही कॉलम्स को डिस्प्ले करता है एट अ टाइम, बट यूजिंग दिस वी कैन डिस्प्ले इट ऑल। Is there any doubt until this point? Please respond in the chat box. Am I audible? So I guess it is clear. Now, from this, house price data frame equals to pd.read csv. What is this? A function from pandas. So house price data frame consists of all the data that is extracted from this location. Now we have some functions over here. So let's understand it one by one, letter by letter. What is house price data frame? The same variable name dot apply. This means we are applying some things which are the arguments. pd.to numeric. Let's understand this dataset properly. What is this? House price india.csv. We have some house IDs, the date of purchase or building, number of bedrooms, number of bathrooms, living area, lot area, that means parking area or the garden, etc. Number of floors, waterfront present. This means is there any water source like pool, swimming pool, etc. in front of you or not?
number of views, that means number of windows on either sides of the house. Like normally if your house has 4 windows on the 4 walls, चारों दीवारों पे एक-एक खिड़की, number of views 4. Condition of the house, ये actually graded है out of 5-star ratings. तो best condition होगा 5 और बेकार condition होगा 1. Grade of house, this is grade provided by people. Area of the house excluding basements, this is in square meters, square feet. Area of the basement, built year, which was the year that it was built, renovation year. This information is 0 right now, so expand it. Okay. Renovation year, postal code, latitude, longitude, the location of the house in the Google Maps, living area renovation, plot area renovation, number of schools nearby, distance from the airport, and price. In this entire data set, all these are the independent variables, and this alone is the dependent variable. The price is the dependent variable, and the rest of it is the independent variable. Now, let's consider which one of these data is important and which is irrelevant to our use. ID. ID का normally हम लोग को prediction में कोई जरूरत नहीं है. किसी कहीं पे किसी घर का ID 689 है, कहीं पे 690 है, कहीं पे 720 है. It doesn't matter, and it doesn't affect the condition of the house. Date of purchase is also not that much irrelevant. Number of bathrooms, number of bedrooms, very important. Living area, very important. Lot area, very important. These things are quite a bit useful for determining the quality of the house. So we have created a list consisting of all the column names, and now we will be applying some functions over it, some operations over it. Yes, house price data frame dot shape. जो शेप होता है ये हमें बताता है कि हमारा जो डेटा सेट है या डेटा फ्रेम है उसके डायमेंशंस कैसे हैं. This means it has 14,621 rows and 23 columns. This is a very vast data set provided to us. Okay. Now, house price data. We have missed something like yes here. House price data frame dot apply pd.to numeric. What does this mean? जब हम लोग डेटा सेट इंपोर्ट करते हैं, कभी कभी कुछ जगह पे इंफॉर्मेशन हम लोग को स्ट्रिंग फॉर्मेट पे दिया रहता है, तो हम लोग को वहाँ पे उस चीज को चेंज करना पड़ता है टू न्यूमेरिक फॉर्मेट में. यहाँ से जो भी डेटा आएगा वो एक न्यूमेरिक फॉर्मेट में आएगा. एरर्स इक्वल्स टू कोर्स. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है जहाँ पे भी कोई एरर होगा उस चीज को वो NaN और नॉट अवेलेबल के फॉर्मेट में लिखाएगा. जैसे अगर यहाँ पे सपोज इधर जैसे 0.75 वाला डेटा नहीं होता तो हम लोग को वहाँ पे कैपिटल N स्मॉल a कैपिटल N इस टाइप के फॉर्मेट में ऐसे यहाँ पे दिया रहता. नेक्स्ट है डाउनकास्ट इंटीजर. This means we are forcibly converting the data, whatever it is, into integer when we are importing, as long as it does not lose any data. Just like मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.75 को अगर मैं import करूँगा, तो फिर इसको अगर मैं integer format में forcefully convert करूँगा, तो वो 0 हो जाएगा. But this would lead to loss of data. So in these cases, the data will be extracted as it is. हम लोग यहाँ पे इस डाटा का टाइप चेक करेंगे. हाउस प्राइस डाटा फ्रेम डॉट डी टाइप्स मींस डाटा टाइप्स, और यहाँ पे हमें पता चल रहा है ऑलमोस्ट ऑल डेटा इज इन फ्लोट फॉर्मेट. नाउ लेट्स कंटिन्यू. हाउस प्राइस डाटा फ्रेम डॉट कॉलम्स इक्वल्स टू कॉलम नेम्स. इसका मतलब है कि हम लोग को जो कॉलम नेम है हम लोग इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, जिससे हम लोग को इसे इजी समझना. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास हाँ इधर से हमारा जो है डाटा प्रोसेसिंग या डाटा प्री प्रोसेसिंग का बात स्टार्ट होता है कि हम लोग डेटा को अपने यूज के हिसाब से इसे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे. जैसे एवरेज कंडीशन ग्रेड, इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? एवरेज कंडीशन ग्रेड मींस कंडीशन ऑफ हाउस एंड ग्रेड ऑफ हाउस. इसको हम लोग एवरेज लिख सकते हैं ना. इसको सिंपली समझते हैं. यहाँ पे कुछ लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया है कंडीशन ऑफ हाउस के बारे में. वेयर इज दिस? यस, कंडीशन ऑफ हाउस और ग्रेड ऑफ हाउस, ये दोनों अलग अलग कॉलम्स हैं. But in the end, these things define only the quality of the house. कि तुम्हारा घर जो खरीदने वाले हो तुम वो कैसा क्वालिटी का. So जो भी डेटा
इसका रिलेवेंट हुआ, हम लोग इसका एग्रीगेट ले सकते हैं। एग्रीगेट मीन्स मीन ले सकते हैं, एवरेज, 2 कॉलम्स का मीन। तो ये सिंपली पुट यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज को इस चीज को इसी फॉर्मेट में किया है, जैसे एवरेज ग्रेड कंडीशन ग्रेड इक्वल्स टू हाउस प्राइस डाटा फ्रेम, कंडीशन ऑफ हाउस प्लस ग्रेड ऑफ हाउस, जिसको हम लोग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो रिजल्ट आएगा हमारे इस वाले को एवरेज के अंदर। दिस विल बी ए न्यू कॉलम। नाउ टोटल एरिया को मतलब है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास दो डेटा दिए हुए हैं कि हम लोग का एरिया ऑफ हाउस कैसा है और एरिया ऑफ बेसमेंट कैसा है। इट इज इन द एंड ये दोनों हम लोग का लिविंग एरिया ही है जो हम लोग का अवेलेबल किया जा रहा है, तो इन दोनों को हम लोग अलग अलग लेने का कोई सेंस नहीं बैठता। तो हम लोगों ने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो टोटल एरिया है वो एक कॉलम बन गया, जिसके अंदर हम लोग इन दोनों को ऐड करके पुट कर देंगे। सो हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम्स आ गए, जो हम लोगों के कुछ कॉलम्स को शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब इनका एक क्या कहते हैं, उनका सारांश ले रहे हैं या उनका इंफॉर्मेशन एक तरह से पुट कर रहे हैं। नाउ हमारे पास जो अननेसेसरी डेटास है, these unnecessary data are very important to be removed because they hinder our model development. Yes, longitude, latitude, it's not important. The only thing important is कि तुम्हारे घर के पास कोई हॉस्पिटल है कि नहीं, तुम्हारे घर के पास स्कूल्स कितने हैं, तुम्हारे घर के पास रोड कैसी है, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। कोई ऐसे नहीं पूछता किसी ड्राइवर या रिक्शा वाले से कि 33 ईस्ट 33 वेस्ट इस लैटिट्यूड में हमें छोड़ के आओ, तो दिस इज इररिलेवेंट। हाउस आईडी लीड्स टू बी कंफ्यूजिंग बिकॉज यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि जो हाउस आईडी है वो इस फॉर्मेट में है। अब हमारा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज स्टिल अ डम मशीन, so he would interpret it as information or data, and he would also include it in the predictions, so this should be removed. Now id, this is removed. Date in which we are verifying, it is not very important because it can change. Postal code as well, not a very important, क्योंकि खरड़ का पोस्टल कोड और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का पोस्टल कोड में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट इन दोनों का एरिया पूरी तरह से अलग है, so this would lead to confusion in our model. Living area renovation, not very important. The only thing important is what is the build year or etc. Lot area renovation, similar case. Condition of the house, it's not we have already converted it into a single data here, namely average condition grade. So we can remove the condition of the house and the grade of the house. ठीक है, तो हम लोगों ने कंडीशन ऑफ द हाउस को हटा दिया और हम लोगों ने ग्रेड ऑफ द हाउस को भी हटा दिया। ठीक है, वाटर फ्रंट प्रेजेंट, इज दैट रियली इंपॉर्टेंट? आई मीन अगर वाटर फ्रंट प्रेजेंट ना हो तो भी मतलब जैसे हाउस का प्राइस उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करना चाहिए किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में। लिविंग एरिया, लॉट एरिया, दिस इज नॉट important because we have already added it in total area here in this line. Is this clear? Let's have how to select dependent variable. Yes, डिपेंडेंट वेरिएबल सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस चीज को, हमारे जो भी डेटा होता है, विल कम बैक टू इट आफ्टर few points, okay, because it would be confusing to explain it right now. So here हम लोगों ने इस चीज का इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने कर दिया, ड्रॉप कर दिया हमने इस इन सभी कॉलम्स को जो अननेसेसरी थे। हाँ, यहाँ पे रिसेंट इंडेक्स, व्हाई इज दिस हियर? रिसेंट इंडेक्स का मतलब ये है कि जब हम लोग इनको ड्रॉप कर देंगे तो हमारा पांडस जो होता है, पांडस क्या करता है, उस लाइन को टोटली रिमूव कर देता है। जैसे अगर हमारा ये वाले लाइन को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं तो इश्यू क्या होगा कि वहां से जब डेटा इरेज होगा तो बाकी सब में से डेटा इरेज नहीं होगा टेक्निकली, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑन दैट मोमेंट वहां से हम लोगों को उससे काउंटिंग को रिस्टार्ट कर देना पड़ेगा, जिससे हमारे बाद में 1, 3, 5 इस तरह के कॉलम्स गायब ना हो जाए। So we have dropped it and this is the column. जब हम लोग कॉलम को ड्रॉप करते हैं तब 0 आ जाता है, जब हम लोग रो को ड्रॉप करते हैं तब 1 आता है। ये हमारा numpy का फीचर है। So here we have printed data frame dot head means we are printing only 5 elements here. Data frame dot shape, it describes the size of the data set.
कुछ थोड़ा साइज चेंज हो गया है, देख सकते हैं हम लोग 14620 and here the size was 14621. We have added a few and as well as removed a few. Now यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो डाटा फ्रेम है इसमें कितने नल वैल्यूज है और उनको सम करेंगे, मीनिंग हाउस प्लस डाटा फ्रेम, हमारा डाटा फ्रेम जो गिवन है उसमें कितने नल वैल्यूज है और उनका टोटल सम। दिस मीन्स नंबर ऑफ बेडरूम्स, इसमें जीरो नल वैल्यूज है, बाथरूम्स इसमें भी जीरो है और ये कम्प्लीटली जीरो वैल्यूज है। beware of one thing, this is a clean data set, so it does not have any null values, but in the real life when we get any data sets it is quite error prone and it needs to be cleared out beforehand. House price data frame dot display, this is a pandas function. इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये हमें बताता है कि हमारे पास नंबर ऑफ बेडरूम्स कितना है, उनका काउंट क्या है, द मीन क्या है, द स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू क्या है, जैसे मिनिमम नंबर ऑफ बेडरूम्स 1 है, इसका 25% के आसपास 25% के जितने कितने रूम्स हैं, इसका मतलब नंबर 3 हमारा कितना वैल्यू है 25%, 25% ऑफ द होल डेटा इज 3 and thereafter continuing this. Max value हमारे पास 33 है, इस तरह से कंटिन्यू होता है। Now correlation, यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोगों का, किस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा इस तरह से हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिसाइड कर सकते हैं। कोरिलेशन इक्वल्स टू हाउस प्राइस डाटा फ्रेम डॉट कोरिलेशन, ये एक फंक्शन है जो हम लोग को डिटरमाइन करता है कि कितना रिलेटेड है सारे डेटा अपने आप से। यहाँ से हम लोग ज्यादा कुछ समझ नहीं सकते क्योंकि बिकॉज इट इज टेक्निकल टर्म, बट टू सॉल्व दिस वी हैव द हीट मैप। हीट मैप हम लोग को बताता है कि हर एक हमारे पास जो भी डेटा सेट जो भी कॉलम है वो दूसरे कॉलम के साथ कितना रिलेटेड। यहाँ पे सेंटर की तरफ हमारे पास हाईएस्ट रिलेशन होता है, ये होता है 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में होता है ये हमारा जो वैल्यू होता है रिलेशन कोरिलेशन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 1 यहाँ पे ये 1 क्यों दिख रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ बेडरूम्स यहाँ पे एंड नंबर ऑफ बेडरूम्स, so these two are completely correlated with each other and it is common sense, right? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लाइटेस्ट जो भी लाइट ब्लू होता है वो हमारा लाइटेस्ट लीस्ट है और हमारे पास डीप ब्लू जो है वो हमारे पास मोस्ट है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला लाइटेस्ट है एंड दिस इज लाइटेस्ट, दिस इज लाइटेस्ट, दिस इज लाइटेस्ट, दिस इज इवन मोर। ओके, नो दिस इज द इवन मोर बिकॉज इट इज -0.2। ठीक है, अब देखो -0.2 क्यों है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर वैल्यूज है, मतलब जब हम लोग इसे इन्वर्स कर लेते हैं तब हमारे पास तो ये माइनस में आ जाता है और जब दूसरे एंगल से देखते हैं तब ये प्लस में आ जाता है। इट इज द सेम वैल्यूज एज। ठीक है, अब इसे कंटिन्यू करते हैं, जैसे यहाँ पे -0.2 एरिया ऑफ द बेसमेंट एंड नंबर ऑफ फ्लोर्स, इन दोनों के साथ बहुत कम रिलेशन होता है इन दोनों का, तो यहाँ पे इनका वैल्यू काफी कम है, बट यहाँ पे 0.6 जैसे प्राइस एंड एवरेज कंडीशन भी, जैसे हमारे पास एक बहुत अच्छा घर है तो उसका प्राइस ज्यादा पड़ेगा ही ऑब्वियसली, तो ये दोनों काफी रिलेटेड है, इस तरह से कंटिन्यू हो सकता है। एनी डाउट्स? काइंडली कोई बता सकता है कि कोई डाउट है कि नहीं किसी को? हाउ आर वी टेकिंग इंडेक्स इन द चार्ट? यस, कौन सा चार्ट बता सकते हैं प्लीज? मतलब हीट मैप की बात कर रहे हैं क्या? ओके, हीट मैप कुछ इंडेक्स है, इस तरह से नहीं है, ये कोई इंडेक्स नहीं है। यहाँ पे हमारे जो वैल्यूज होते हैं वो 0 और 1 के बीच में स्क्वीज हो जाता है। प्लीज इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ओह सॉरी, अब ठीक है, मुझे एक्चुअली हीट मैप को फुल्ली दिखाना था इसलिए मैंने हीट मैप को थोड़ा सा स्क्वीज कर दिया था। अभी एक्चुअली हम लोग हीट मैप पे फोकस कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अनफॉर्चुनेट, ठीक है सर। हाउ आर वी टेकिंग इंडेक्स इन द चार्ट? इंडेक्स यहाँ पे जो चार्ट है ये इंडेक्स टी हमारा, ठीक है,
यहाँ पे हम लोग बस नंबर ऑफ कॉलम्स है, जो भी हमारे पास कॉलम्स दिए हुए थे, देखिए number of bedrooms, number of bathrooms, number of floors, number of views. Same thing is here. Number of bedrooms, number of bathrooms, number of floors, number of views, इस तरह से. और हम लोग के पास ये क्रॉस मैट्रिक्स टाइप का, ठीक है, क्रॉस एक क्रॉस बाय क्रॉस कर रहे हैं इधर, सेम वैल्यूज इधर, ठीक है, देख सकते हैं. ये कोई इंडेक्स नहीं है, ये हम लोग इन दोनों का रिलेशन देख रहे हैं इनके बीच में. और ये रिलेशन कैसे प्रेडिक्ट होता है, इस तरह से कि यहाँ पे जो वैल्यूज है ये इन दोनों के साथ रिलेटेड कितना है. जैसे यहाँ पे जब हमारे पास नंबर ऑफ व्यूज 4 होते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ व्यूज 4 होते हैं तो हमारा प्राइस इतना रहता है. जब हमारे पास नंबर ऑफ व्यूज 0 होता है तब हमारे पास प्राइस इतना रहता है. दैट मीन्स जब हमारे पास व्यूज कम हो गए प्राइस भी कम हो गया. तो हम लोग व्यूज और प्राइस का रिलेशन कैसे देखेंगे, प्राइस एंड व्यूज पर इज व्यूज, प्राइस और व्यूज फेयरली हाई है, ठीक है, फेयरली हाई प्राइस और व्यूज का रिलेशन जो है काफी अच्छा है, इस तरह से देख सकते हैं. प्राइस और एवरेज कंडीशन ग्रेड, जो हमारे पास प्राइस है इधर, जो हमारे पास प्राइस है इधर, यस, जो हमारा प्राइस है ये हमारे पास कंडीशन ग्रेड के साथ कैसे, जैसे कंडीशन ग्रेड जो है हमारे पास यहाँ पे 5.5 और यहाँ पे 5 lakhs, एक फ्रॉड रेट है. ये कंडीशन ग्रेड अगर 7.5 हो गया तो हमारे पास प्राइस बहुत ज्यादा है, और हमारे पास कंडीशन ग्रेड थोड़ा कम हो गया तो हमारे पास ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है. दैट मीन्स प्राइस और कंडीशन ग्रेड काफी ज्यादा रिलेटेड है. तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू था इन दोनों के रिलेशन का वो 0.6 के आसपास, ठीक है. इज दिस क्लियर जतिन? ओके, थैंक यू. नाउ स्प्लिटिंग द डाटा एंड टारगेट. अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास जो मशीन लर्निंग का मेन कंसेप्ट है. अब यहाँ से शुरू करता है हमारा जो मशीन लर्निंग का मेन कंसेप्ट है. मशीन लर्निंग इज बिटवीन क्या कहते हैं, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. तो यहाँ पे जो y है ये हमारा टारगेट है और जो x है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है. हम लोग x का यूज करते हुए प्रेडिक्ट करेंगे कि y का वैल्यू क्या होगा. हमें y में क्या प्रेडिक्ट करना है, प्राइस. और हमारे पास x में क्या होगा, एवरीथिंग दैट इज नॉट प्राइस इन द डेटा फ्रेम. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्राइस है इस प्राइस को हम लोग इधर से रिमूव कर देंगे, ठीक है. जैसे प्राइस रिमूव होगा तो हमारे पास x रिमेनिंग एलिमेंट्स का रह जाएगा, ठीक है. यहाँ पे हो चुका है, हम लोग देख सकते हैं. Once again, just revise the concepts of how to select the dependent and independent variables from the given data set. How one can be confirmed that which is our target and the dependent variables. Okay, which is our target and dependent. ऐसा हम लोगों को नॉर्मली ना, जब हमें कोई भी इंडस्ट्री में हमें इस डेटा सेट दिया जाएगा, हमें पूछा जाएगा कि सर हमें ये पूछा जाता है कि एक मॉडल बनाइए जो हमें कोई चीज प्रिडिक्ट करेगा. जैसे हमें नॉर्मली हम लोगों को यहाँ पे एक डेटा सेट दिया हुआ है जिसमें हमारे पास हाउस के फीचर्स दिए हुए हैं और इन दी एंड हमें प्रिडिक्ट करना है प्राइस, ठीक है. हमारे पास जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो हमारे फीचर्स में आते हैं. जो भी हमारे पास जो भी फीचर्स हैं वो हमारे क्या कहते हैं कंडीशंस में आते हैं. तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ बेडरूम्स है, नंबर ऑफ बाथरूम्स है, नंबर ऑफ फ्लोर्स, नंबर ऑफ व्यूज, एरिया ऑफ हाउस एक्सक्लूडिंग बेसमेंट, एरिया ऑफ बेसमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें हम लोगों के हाउस के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं कि हमारा घर कैसा होगा. ऐसे नॉर्मली लोग जब घर खरीदते हैं वो देखते हैं कि ये 3 BHK है या 2 BHK है. इस तरह से डिटरमाइन होता है ये हमारा घर का प्राइस. तो फिर जब हमें प्रेडिक्ट करना है तो हमें प्राइस प्रेडिक्ट करेंगे और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ये चेंज हो सकते हैं, कहीं पे घर ज्यादा अच्छा कंडीशन में होगा, कहीं पे घर थोड़ा खराब कंडीशन में होगा. उस बेसिस पे हमारे घर का प्राइस भी इफेक्ट होता है और घर के कंडीशन के साथ प्राइस बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. और हमारे पास जो टोटल एरिया है वो प्राइस के साथ थोड़ा कम इफेक्ट होता है.
इस तरह से हमारा है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ स्कूल्स नियर बाय और एरिया ऑफ बेसमेंट, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा 0-0 है इनका कोई रिलेशन। डिस्टेंस ऑफ एयरपोर्ट और एरिया ऑफ बेसमेंट, कोई रिलेशन नहीं इन दोनों का। किसका एरिया किसी का घर का बेसमेंट का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बट ये नहीं डिटरमाइन करता है कि दिल्ली एयरपोर्ट कितना दूर है। तो इन दिस बेसिस हम लोग बता किसे किसे हम लोग चूज करना है, वो हम लोग को उस हिसाब से डिटरमाइन करना है। हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है प्राइस ऑफ हाउस, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन के लिए हमें प्राइस को डिपेंडेंट वेरिएबल लेना पड़ेगा, और जो हमारे पास रेस्ट ऑफ इट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास हमने इधर इन्हें प्रिंट कर दिया है। दिस इज नॉट अ वेरी सुटेबल फॉर्मेट, इसे हम लोग हेड के हिसाब से करेंगे तो बेटर होगा। तो यहाँ पे x डॉट हेड किया, हेड में बेटर है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं x के अंदर क्या डेटा है और y के अंदर क्या डेटा है। x के अंदर हमने प्राइस को रिमूव कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी प्राइस नहीं है हमारे इसमें। इज दिस क्लियर? और अगर हम लोग यहाँ पे y डॉट हेड करेंगे, हाँ, y डॉट हेड करेंगे तो हमें y के बारे में बताया जाएगा। ये प्राइस है एंड डाटा टाइप इज फ्लोट, ठीक है। दिस इज अ सिंगल कॉलम एरे, दिस इज अ सिंगल कॉलम डाटा सेट एंड दिस इज मल्टीपल कॉलम। तो यहाँ से हम लोग का एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। व्हाट इज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इज अ फंक्शन which is from model sklearn dot model selection। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करता है? यहाँ हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें कभी कभी एक डेटा सेट दिया गया है बहुत बड़ा, नहीं हमारे पास ओके, हमारे पास एक एवरेज साइज का डेटा सेट दिया हुआ है, जैसे 1000 एलिमेंट्स का, ठीक है। अब हमारे पास जब ये 1000 एलिमेंट्स का एक डेटा सेट है, तो हम लोग इस चीज को क्या कहते हैं, हम लोग इस चीज को अलग अलग करके स्प्लिट करना चाहते हैं। ऐसा हम लोग इसे ट्रेन भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे। पहले हम लोग ट्रेनिंग का मतलब समझते हैं। जब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की बात आई है तो हम लोग ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच में अंतर समझते हैं, तब ज्यादा आंसर क्लियर होगा हमारा कंडीशन, ठीक है। व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग मीन्स, हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था ना रिग्रेशन के बारे में। जैसे एक स्टूडेंट का CGPA है 7, तो उसको इन दी एंड सैलरी पैकेज मिला है 5 लाख का। एक स्टूडेंट का CGPA है 8, तो उसे सैलरी पैकेज मिला है 8 लाख का। एक स्टूडेंट है जिसके पास CGPA 10, उसको सैलरी पैकेज मिला है 15 लाख का। इस हिसाब से हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सपोज हम लोगों को अगर किसी एक स्टूडेंट के पास 8.5 CGPA हुआ, तो उसको क्या पैकेज मिलेगा? उसको मिलेगा ऑब्वियसली 15 से थोड़ा ज्यादा मिलेगा। इस हिसाब से हमारा प्रेडिक्शन सिस्टम काम करता है। जो हमारे पास CGPA है, that is an independent variable, and the rest of it is dependent variable. And the rest of it is dependent variable. Dependent variable कैसे? Okay, now it is freely available for everyone. तो फिर हम लोग यहाँ पे बात करना स्टार्ट करते हैं फिर से। जैसे x train, x test, y train and y test। यहाँ पे हमारा जो x train डेटा है, ये फंक्शन इसी ऑर्डर में 4 जगह पे वैल्यू सेट करता है, ठीक है। अगर हम लोग सोचेंगे कि y टेस्ट को इधर ले लेते हैं, x टेस्ट को इधर ले लेते हैं, ये फंक्शन y टेस्ट की जगह पे x टेस्ट का वैल्यू स्टोर करेगा और x टेस्ट की जगह पे y टेस्ट का वैल्यू स्टोर करेगा। सो बी वेरी स्पेसिफिक एट दिस पॉइंट बिकॉज लेटर ऑन दिस वुड बी इंपॉर्टेंट। तो फिर यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या कर रहा है? हमारे पास 2 इनपुट्स ले रहा है, x एंड y। व्हाट आर x एंड y? ये हमारे पास है x एंड y, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डेटा, ठीक है। टेस्ट साइज, व्हाट इज टेस्ट साइज? टेस्ट साइज होता है हमारे पास जो टेस्ट का डेटा है उसका साइज। हमने हमारे 100% जो डेटा है, हमारे पूरा 14,000 एलिमेंट्स का जो डेटा था, वो 14,000 डेटा को हम लोगों ने स्प्लिट किया है 0.8 और 0.2 के बेसिस पे, ठीक है। हमारे पास जो टेस्ट साइज है, जो जिस चीज के ऊपर हम लोग हमारे मॉडल को टेस्ट करेंगे, वो हम उसका साइज है 0.2% या फिर क्या कहते हैं, सॉरी 20% ऑफ द एंटायर डेटा सेट, 0.2,
ठीक है, और जो हम लोग ट्रेन करेंगे वो है हमारे पास 0.8%, ठीक है। इस चीज को हम लोग 0.4 भी ले सकते हैं, इसको हम लोग 0.3 भी ले सकते हैं, बट नेवर टेक टेस्ट साइज मोर देन 0.5, ठीक है, बिकॉज इट वुड लीड टू लेस ट्रेनिंग एंड इनएक्यूरेट रिजल्ट्स। तो हम लोग इस चीज को पहले जैसे रख देंगे, ठीक है। नाउ रैंडम स्टेट, व्हाट इज रैंडम स्टेट? रैंडम स्टेट का मतलब होता है जैसे हमारे पास कभी कभी कोई डेटा दिया हुआ है इधर, ठीक है, हो सकता है एक जगह पे पूरा महाराष्ट्र का डेटा दिया हुआ है, फिर 1 से 5 तक पूरा महाराष्ट्र, फिर 6 से 10 तक दिल्ली का, फिर 10 से 12 तक, 10 से 20 तक हमारे पास राजस्थान का, इस बेसिस पे हमारे पास डेटा दिया हुआ है। तो हमारा जो मॉडल है एक बायस डेवलप कर सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय बायस? कि मतलब मॉडल को ये लगने लग सकता है कि शायद इस जगह पे सिर्फ 15,000 का ही रेंट मिलता है, मतलब कपड़ा मिलता है, यहाँ पे सिर्फ 1.5 लाख का ही रेंट मिलता है, तो दिस वुड लीड टू कंफ्यूजिंग रिजल्ट्स। इन द एंड एक्यूरेसी वुड गेट रिड्यूस्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इधर रैंडम सेट 2 ले लेते हैं। 2, दिस इज नॉट एनी नंबर, हम लोग 8 भी ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पे 30 भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे 777 भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे फिर हम लोग इस चीज को प्रिंट करेंगे हर एक शेप को डेटा को समझने के लिए। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, हम लोग प्रिंट करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया हमारे रिग्रेसर मॉडल को। मॉडल जैसे ट्राई कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मॉडल के बारे में समझते हैं। इधर हमने जो यूज किया है दिस इज XG बूस्ट रेग्रेसर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो अननेसेसरी अभी हम लोग हेडेक में नहीं जाएंगे, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, ठीक है। ये हमारा सिंपल मॉडल को कॉल करने का तरीका होता है, इसका ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस हम लोग फ्रॉम XG बूस्ट एक मिनट समझे, इंपोर्ट। जहाँ पर ना मेजरली हम सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि जो एक्स के लर्न है, जो स्काई लर्न है, स्काई किटकन, उसके ऊपर फोकस करो। जो मॉडल्स हैं वो हम दोबारा करेंगे प्रॉपरली, क्योंकि मॉडल कैसे वर्क करता है उसकी इन डेप्थ नॉलेज है वो कवर करेंगे। मतलब सिर्फ ये समझने की कोशिश करो कि एस के लर्न है जो वो कैसे फास्टली काम करती है, कैसे काम को इजी बनाती है वो, ठीक है। मॉडल प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो अभी लेटर की स्टोरी है, ठीक है। जितना समझ में आता है उतना समझ लो अभी फिलहाल, ठीक है, समझे वो। दिस ओके, लेट्स कट इट शॉर्ट आई गेस। हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल के अंदर इस चीज को, यहाँ पे जो ये मॉडल है बस हम लोग समझ लेते हैं कि इसके अंदर हमारा जो भी मशीन ने समझा है सीखा है वो इस मॉडल के अंदर पुट है, ठीक है। बस अभी जो भी मॉडल रिलेटेड बात होगी वो इस वेरिएबल के साथ बात होगी, ठीक है। नाउ कंटिन्यूइंग, यहाँ पे हम लोगों के पास sklearn का एक फंक्शन होता है मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। दिस वुड लीड टू द प्रेडिक्शन ऑफ डेटा। प्रेडिक्ट करने पर हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके अंदर पुट होगा, ठीक है। जैसे इससे जो भी प्रेडिक्ट किया है एक्सटेंड को यूज करके वो हमारे पास उसका रिजल्ट आएगा इस फॉर्मेट में। दिस इज अ लिस्ट फॉर्मेट, ठीक है। नाउ sklearn का एक और फीचर होता है मैट्रिक्स डॉट R2 स्कोर का मतलब क्या है, रूट स्क्वायर स्कोर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर समझ सकते हैं कि R2 स्कोर क्या है, जरूरत नहीं है इस चीज का इंपॉर्टेंट है, बट दिस मीन्स ओनली दैट इट इज कैलकुलेटिंग द डिफरेंस और द एक्यूरेसी स्कोर। फिर हम लोग इसे प्रिंट करेंगे। यहाँ पे जब हम लोगों ने इसका एक्यूरेसी समझा है, एक्यूरेसी देखा है, इसका एक्यूरेसी है 0.92%, 0.92, दैट मीन्स 92.59%, एंड इट इज क्वाइट एन एक्यूरेट मॉडल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस चीज को स्कैटर प्लॉट कर सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना है, ओके। नाउ प्रेडिक्शन और टेस्ट डेटा मॉडल, यहाँ पे हम लोगों ने जो भी टेस्ट किया था इस चीज को हम लोगों ने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर चेक किया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे वाई ट्रेन और ट्रेनिंग डेटा प्रेडिक्शन, ठीक है। दैट मीन्स ये हमारे पास जो ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ये दिस मॉडल इज वेरी एक्यूरेट। नाउ टेस्टिंग डेटा के ऊपर देखते हैं। जब हम लोग टेस्टिंग डेटा के ऊपर जाएंगे देन इट्स एक्यूरेसी गेट्स dwindled। यहाँ पे हमारे पास इसका एक्यूरेसी से 65% तक रह गया है, बट दिस इज अ कॉमन थिंग इन दिस केस, बिकॉज यहाँ पे हम लोग नंबर्स को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्राइसेस को प्रेडिक्ट कर रहे हैं चीजों के, तो प्राइसेस को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाना
मॉडल के लिए उतना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे हाँ, ये यहाँ पे 238 4 0 0 0, ठीक है। तो फिर इस चीज को प्रिडिक्ट करना मॉडल के लिए पॉसिबल नहीं है। मॉडल प्रिडिक्ट कर सकता है 2,16,000, इस तरह से प्रिडिक्ट कर देता है नॉर्मली, और दिस इज नॉट वेरी एक्यूरेट। और तो फिर हमारा एक्यूरेसी थोड़ा सा ड्वाइंडल हो जाता है टेस्ट केसेस में, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोगों ने एक इनपुट एरे लिया है। इनपुट एरे मीन्स कोई भी रैंडम डेटा सेट डेटा टाइप, कोई भी रैंडम डेटा इंपोर्ट किया है, और इनपुट करने के बाद इसे हम लोगों ने रिशेप किया है नंपाई की मदद से। रिशेप 1, दिस इज अ फॉर्मेट। अगर इस चीज को नहीं लिखेंगे तो एक एरर देगा वो कि इसे रिशेप करने की जरूरत है 1D एरे के फॉर्मेट में। नाउ प्रेडिक्शन इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, सेम थिंग लाइक हियर, कि हम लोग इस प्रेडिक्शन के अंदर हम लोग इस मॉडल की मदद से इस इनपुट डेटा को यूज करते हुए प्रेडिक्ट करेंगे इस मॉडल के बेसिस इस चीज का प्राइस। ये जो है हमारे फीचर्स है, और इस चीज को हम लोग यूज करते हुए प्रेडिक्ट करेंगे डेटा को। और मॉडल प्रेडिक्ट करने के बाद हमारा जो आउटपुट है वो इस हिसाब से है कि हमारा जो घर होगा वो समथिंग दिस प्राइस रेंज के आसपास होगा, ठीक है। तो दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? इसके अंदर भी जरूरत नहीं है, बट मैं दूसरा वाला करना पड़ेगा। अच्छा, लेट्स गेट बैक टू द बेसिक्स। यहाँ पे हमारे पास numpy एज np, ये शायद बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट फिर भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे numpy एज np, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग numpy जो है, इस numpy को हम लोग np फॉर्मेट में ले रहे हैं। हम लोग अगर numpy ना इस तरह से ना भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे numpy नहीं लिया हमने, तो यहाँ पे जो भी फंक्शंस होंगे, ऐसे नहीं लिखते, पांडास के साथ करते हैं वाला एक्सपेरिमेंट। हमारे पास अगर numpy नहीं भी लिया, पांडास को इस तरह से नहीं भी लिया, तो हमें जो भी पीडी होगा इस चीज को हमें पांडास के फॉर्मेट में लेना पड़ेगा। Whoops. इसे पूरा पांडास के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, और जहां जहां पे भी हम लोगों को पीडी नहीं लिखा है वहां पे एरर देगा, तो हमें पूरी तरह से पांडास के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा इस चीज को। तो ये हमें थोड़ा सा इजी कर देता है हमारे काम को। जैसे कभी कभी हमारे पास जो डाटा से जो भी हमारे लाइब्रेरीज होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उनका नाम काफी बड़ा हो जाता है। जिस तरह से पहले फेच कैलिफोर्निया, हाउसिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतने सारे वर्ड्स को कैसे ले सकते हैं। XGB रिग्रेसर, बस एक एस की गलती हुई वैसे ही हमारा मॉडल फेल कर जाएगा। तो हम लोग इस तरह से नहीं लेते हैं, हम लोग इस चीज को थोड़ा स्मॉल कर देते हैं। एंड देन
हम लोग थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग के ऊपर थोड़ा आगे जाएंगे, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग मीन्स हम लोग डेटा को थोड़ा सा पहले अपने हिसाब से चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक नया डेटा सेट लिया है, ये है हमारे पास स्मार्टफोन डॉट CSV। ये डिटरमाइन करता है हमारे पास स्मार्टफोन प्राइसेस को, ठीक है। स्मार्टफोन प्राइसेस को मतलब जैसे प्रेडिक्ट करने के लिए काम आता है। हमारे पास जैसे जो हमारे पास नॉर्मली डेटा सेट है इस टाइम पे, हमारे पास जो डेटा है वो इस फॉर्मेट में है। ये वन प्लस 11 5G प्राइसेस इस तरह से, ये काफी सारा डेटा है इसमें, इस चीज को थोड़ा शॉर्ट कर दो। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास जो डेटा है इस फॉर्मेट में, ठीक है। अब हम लोग इस चीज में कोई इश्यू देखते हैं। क्या इश्यू है? हमारा कंप्यूटर एज यूजुअल इज अ डम मशीन, तो उसे ये नहीं समझ में आता कि वन प्लस क्या है, सैमसंग क्या है, मोटोरोला क्या है और रियलमी क्या है। he only determines it in form of bytes and bits। तो हम लोग इस चीज को थोड़ा सा ट्वीक करते हैं। हम लोग इनको sklearn के एक लाइब्रेरी यूज करते हैं कि sklearn from sklearn.preprocessing import label encoder। लेबल इनकोडर क्या करता है? लेबल इनकोडर इन चीजों को 1 2 3 4 इस फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर देता है। सपोज वन प्लस को वो 1 ले लेता है, सैमसंग को 2, मोटोरोला को 3, रियलमी को 4। तो यहाँ पे ब्रांड नेम को कैसे चेंज करेगा वो? 1 1 2 3 4 इस फॉर्मेट में, जस्ट इजी, ठीक है। यहाँ पे ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर को ये नहीं समझ में आता कि ये सब क्या है। ये ओनली इंटरप्रेट्स इट एज बिट्स। यहाँ पे हम लोगों ने इसे थोड़ा यहाँ पे इस तरह से किया है, जैसे लेबल इनकोडर को हमने एलई के अंदर इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट कैसे किया? यहाँ पे हमें इसे इनकोड करना है। इनकोडेबल डेटा क्या क्या है? हमने इधर एक लिस्ट लिया है। तो ब्रांड नेम को हम लोग इनकोड कर सकते हैं, मॉडल को हम लोग इनकोड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे #5G येस और नो, ये तो ट्रू है तो हम लोग इसे ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में नहीं रखेंगे। इसे हम लोग लिखेंगे 1 और 0, 1 रिप्रेजेंटिंग ट्रू एंड 0 रिप्रेजेंटिंग फॉल्स, ठीक है। तो हम लोगों के पास यहाँ पे हैज NFC ट्रू और फॉल्स 1 और 0 के फॉर्मेट पे होगा। हैज इंफ्रारेड रेडिएशन ब्लास्टर वगैरह वगैरह, इसे हम लोग 0 1 के फॉर्मेट पे रखेंगे, ठीक है। हमारे पास प्रोसेसर का ब्रांड क्या है, इधर 1 2 3 4 इस तरह से चेंज कर देंगे हम लोग इस चीज को। हाँ, ये इन चीजों पे काम नहीं करेगा, जैसे ये 8 8 8 इस तरह से है, इन्हें हम लोग इनकोड नहीं करेंगे, इनको हम लोग इग्नोर कर देंगे। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम्स को ही हम लोग इधर लिखा है। रेस्ट ऑफ इट इज एज इट इज। ये हमारे पास फंक्शन है डाटा सेट आई, ये इस फॉर्मेट में होता है। इस चीज को थोड़ा सा करेक्टली लिखते हैं, जैसे डाटा सेट एंड देन कॉलम नेम। कॉलम नेम मींस ब्रांड नेम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज लिख सकते हैं, जैसे फास्ट चार्जिंग, प्राइस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कोई भी एग्जांपल लिए, ये करेक्ट नहीं है बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी हम लोग इसे लेंगे। इक्वल्स टू LE। LE क्या है? दिस इज LE। LE से हम लोगों ने लिया डॉट फिट। हम लोग फिट भी कर सकते हैं, इसे फिट ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। फिट ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि इसे इस फॉर्मेट में लेगा और उसे कन्वर्ट भी कर देगा इन प्लेस, और कन्वर्ट करने के बाद इसे ट्रांसफॉर्म किया डाटा सेट प्राइस। यहाँ पे हम लोगों ने प्राइस को इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया। बिवेयर, प्राइस नहीं चेंज होगा, बस एग्जांपल दिया है क्योंकि यहाँ पे सारे डेटा को चेंज कर दिया है, ठीक है। बस एक एग्जांपल है, ये ब्रांड नेम भी हो सकता है, ये मॉडल भी हो सकता है, ये #5G इस फॉर्मेट में होगा, दिस इज नॉट, ठीक है। चलो हम यहाँ पे पहुंच गए, हम लोगों ने इनकोड कर दिया। और जब इनकोड कर देते हैं तो हम लोग इस चीज को कम्प्लीटली 0 और 1 के फॉर्मेट में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रांड नेम 29 29 36 25 33 0, जो 6 नंबर का मॉडल था उसे 0, 6 नंबर का ब्रांड जो था उसे 0 लिया इधर इस मॉडल ने, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं एक और पॉइंट पे। यहाँ पे कोई एक इश्यू है जो हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे #5G का वैल्यू है 1 और हमारे पास मॉडल का वैल्यू 300 तक जा रहा है, 500 तक भी जा रहा है और 900 तक भी जा रहा है, ठीक है। ब्रांड नेम हमारे पास 33 तक जा रहा है, ठीक है, बहुत कम है। बैटरी कैपेसिटी 5000 3000, वैल्यूज यूनिफॉर्म नहीं है, काफी इधर उधर है। प्राइस के साथ भी सेम है, 54,000 एंड 1 एंड इवन 0। तो हमारा जो डेटा है उसमें काफी ज्यादा स्टैंडर्ड डिवीजन है, ठीक है। हम लोग पहले देखेंगे काफी ज्यादा स्टैंडर्ड डिवीजन, तो फिर हम लोग इस चीज को स्टैंडर्डाइज करने का ट्राई करेंगे।
स्टैंडर्डाइज करने से क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो यूनिफॉर्म फॉर्मेट में आ जाता है। 1 के अंदर 0 और 1 के बीच में स्क्वीज हो जाता है, 0, 1 और -1 के बीच में स्क्वीज हो जाता है। इसकी मदद से क्या होता है, हमारा जो मॉडल होता है उसे प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है, इतने बड़े वैल्यूज के साथ खेलना नहीं पड़ता उसे। सेम थिंग एज देयर, हम लोगों ने पहले जैसे काम किया था वही चीज वापस करेंगे इधर भी। हम लोग इधर से ब्रांड नेम्स को चेंज करेंगे, इधर इंपोर्ट करेंगे, ऐसी स्टैंडर्ड स्केलर को यूज करते हुए हम लोग इसे फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे। हम लोग इसे फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे और इस चीज को फिट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे इस चीज को। यहाँ पे हमने इस चीज को कन्वर्ट कर दिया 0 और 1 के बीच में। ओके, प्राइस को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि प्राइस को बाद में हमें डिकोड भी करना पड़ेगा, तो हम लोग इस चीज को अननेसेसरीली अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा, बट बाद में जब हम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, लास्ट की तरफ मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे प्रेडिक्शन के बाद जब रिजल्ट आएगा ये भी -1.0 इस तरह से कुछ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लोग को ये समझने में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए इसे एनकोड नहीं किया अभी के लिए। ओके, देन ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कुछ नल वैल्यूज है। इज नल डॉट सम करके देखेंगे कि रेटिंग के कुछ वैल्यूज खाली पड़े हुए हैं, फास्ट चार्जिंग के कुछ वैल्यूज खाली पड़े हुए हैं, एक्सटेंड अप टू कुछ खाली है, एज वेल एज दिस बैटरी कैपेसिटी कुछ खाली हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख सकते हैं एक्सटेंड अप टू, यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग जो 200 वैल्यूज खाली है मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग NaN का मतलब है कि वो अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो हम लोग इस चीज को 0 भी डाल सकते हैं आई गेस। तो इस चीज को इसने थोड़ा सा इश्यू में डाला है कि यहाँ पे 0 या 1 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नल वैल्यूज है इन चीज को हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे इसको वॉटेज का बात किया हुआ है, तो हम लोग इसे कन्वर्ट करके 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर नहीं है तो हम लोगों ने इस चीज को रिप्लेस करके 0 में बदल दिया। दिस इज जस्ट नंपाई इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू मीन्स वहां पे जाके परमानेंटली सेव करेगा इस चीज को। np.nan मीन्स जहां पे भी नल वैल्यूज है उनको 0 के साथ रिप्लेस करेगा। सेम थिंग एक्सटेंड अप टू और फास्ट चार्जिंग। एक्सटेंड अप टू का मतलब है जो हमारे पास जो मेमोरी होता है, मेमोरी एक्सटेंड अप टू। ऐसे कुछ लैपटॉप्स होते हैं ना जिनमें 1 GB एक्सटेंड कर सकते हैं, 10 GB एक्सटेंड कर सकते हैं, बट कुछ में कर नहीं सकते हैं। तो जहाँ पे NaN है उनको हम लोग 0 भी कर सकते हैं, कि मतलब वहां पे एक्सटेंड ही नहीं हो सकता तो 0 एक्सटेंड करेंगे उस चीज को, जिससे ये नल वैल्यूज क्लियर हो जाएंगे। हमें बस ये नल वैल्यूज को क्लियर करना है जिससे कोई एरर ना है आगे चल के। चलो ये हो गया हमारा। और क्या है इधर, जैसे रिजोल्यूशन हाइट, रिजोल्यूशन वेट, ये पिक्सल्स के फॉर्मेट पे है कि हमारे स्क्रीन का साइज कितना बड़ा है, ठीक है। डाटा सेट द शेप 980 by 26, दिस इज को रिलेटिवली स्मॉल डेटा सेट। हम लोगों ने यहाँ पे इमीडिएटली ड्रॉप क्यों नहीं किया पिछली बार की तरह, ड्रॉप करते तो फिर और छोटा हो जाता वैल्यू, इसलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया इधर, वरना हमारा पूरा डेटा सेट गायब हो सकता था। अगर हम लोग इस चीज को, हमने इस चीज को भी इनकोड कर दिया, प्राइस एज इट इज रह गया, इस चीज को भी थोड़ा सा इनकोड किया हमने, प्राइस को भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंटिन्यू चलता रहेगा। हाँ, यहाँ पे हम लोग इस चीज को हीट मैप के फॉर्मेट पे देख सकते हैं। यहाँ पे हीट मैप का इश्यू क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज थोड़े ज्यादा बड़े हैं, तो इन चीज को थोड़ा सा बाद में एडिट करने पर, हीट मैप के फॉर्मेट पे थोड़ा चेंज करने पर पता चल जाएगा। बट राइट नाउ हम लोग देख सकते हैं कि प्राइमरी कैमरा और जो प्रोसेसर है उन दोनों के साथ कोई रिलेशन बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे काफी फीका वैल्यू, फीका कलर है। दैट मीन्स इतना वैल्यू वैल्यू इतना ज्यादा हाई नहीं है। सेम थिंग हियर, प्रोसेसर स्पीड के साथ एक्सटेंडेड मेमोरी अवेलेबल का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए -0.6 वेरी लेस। बहुत ज्यादा हाई क्या है हमारे पास इधर, जो प्राइस के साथ हमारा ब्रांड नेम, जैसे एप्पल इनहेरेंटली प्राइस ये एप्पल कंपनी है, हमेशा ही एक्सपेंसिव हो जाता है एप्पल, और कभी कभी लावा वगैरह थोड़े सस्ते में आ जाते हैं। ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और फिर कंटिन्यूइंग लाइक दैट, डाटा सेट डॉट शेप एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने जो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर यूज किया है, इस चीज को बाद में समझेंगे हम लोग। R2 स्क्वायर रूट स्क्वायर स्कोर, ये डिफरेंस चेक करता है, हमारा स्कोरिंग करता है कि हमारा जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज है जो एक्चुअल टेस्ट वैल्यूज से कितने डिफरेंट थे। हम लोगों ने इधर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज किया है, जैसे हमने पहले किया था, रैंडम स्टेट का वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं।
89 0 10 7 डजंट मैटर, कुछ भी दे सकते हैं। फिर हम लोगों ने, हाँ यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी काम किया है कि हमें इधर डेटा सेट बनाना है, ठीक है। हमें जो इनपुट लिया है वो इनपुट इसी डेटा सेट के अंदर से ले लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने जो डेटा था वो इस डेटा सेट के फिफ्थ पोजीशन, मतलब 0 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे इस हिसाब से जो डेटा था उसे हम लोगों ने पुट किया है इस डेटा के अंदर लिस्ट फॉर्मेट में, ठीक है। और जो फिफ्थ पोजीशन था उधर जो सेकंड डेटा था वो हमारे पास प्राइस था, बट हियर प्राइस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फिर हम लोग प्राइस को रिमूव कर देंगे इस तरह से, प्राइस डॉट पॉप 1, ठीक है। तो प्राइस डॉट पॉप 2, इस तरह से करें। तो फिर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से हमें डिफाइन कर देगा। वन सेकेंड, इट्स लोडिंग अ बिट। इस तरह से तो हमें हमें जो भी प्रेडिक्ट किया था वो इस तरह से आ जाता है हमारे पास, एंड दैट्स इट। मैथमेटिक्स के अंदर एक लास्ट टॉपिक अपने पास बचा हुआ था, प्रोबेबिलिटी का। कहीं ना कहीं पे प्रोबेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी जरूरी है। प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत ज्यादा डीप डगडिंग तो नहीं करेंगे हम, पर जो मेन कंसेप्ट्स हैं जो अपने काम आएंगे उसको जरूर देखेंगे। तो लेट्स रिवाइज कि प्रोबेबिलिटी का क्या सिस्टम है और क्या उसमें काम आती है। साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना, एसके जो किट लर्न है इसकी कंप्लीट एक वेबसाइट है, आपने वो वेबसाइट असेस करनी है। वेबसाइट असेस करने के बाद आपने देखना है उसमें से कि क्या क्या चीजें आप सीख सकते हो। वो इजीली अवेलेबल है, ओपन टू ऑल है। ये देखो, एसके लर्न, इसके आप जाके इसके जो न्यू रिलीजेस हैं, न्यू हाईलाइट्स हैं, ये सारे पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो मेंशन्ड है कि बिल्ड इन नम पाई, एस सी आई पाई और मैथ डॉट प्लिट प्लॉट जो लिव है वो इसके बीच में ऑटोमेटिकली इनबिल्ड है, बीच में ही है इसके, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हम करने लगे थे प्रोबेबिलिटी का, एक मिनट। यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया था अपना, मैथमेटिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने करनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हमने देख लिया था, ये सब चीजें समझ ली थी। ओके, प्रोबेबिलिटी का मेजर पार्ट जो है वो कंप्लीट ही हो चुका है, ठीक है।
सबसे पहले एक लैब बना लेते हैं। जो नॉलेज हमने एसके आई की लर्न की देखी है उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी भी है। वन बाय वन करेंगे। अब नई एक फाइल बनाते हैं। जब भी हम कभी भी कोई काम शुरू करते हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपने लिए होती है डेटा। अगर कोई भी मॉडल हमने अप्लाई करना है, कुछ प्रोडिक्शन करनी है, मान लो कि हमने प्रोडिक्शन करनी है कि सचिन तेंदुलकर या कोई भी क्रिकेटर है, विराट कोहली है, उसने नेक्स्ट जो मैच होगा उसमें कितने मार्क्स वो स्कोर कर सकता है, तो उसके लिए हमें बस जो ओल्ड ईयर्स का डेटा है वो बहुत एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। अगर डेटा बायस्ड होगा, डेटा गलत होगा, या डेटा यूनिफाइड नहीं होगा, तो क्या होगा, जो प्रोडिक्शन है वो गलत होगी, मॉडल सही काम नहीं करेगा। इसलिए अपने पास सही डेटा होना बहुत जरूरी है। अब जब डेटा मिलता है तो उसके अंदर कुछ कंट्रीज मिस होती हैं या इम्बैलेंस्ड होती हैं, वो सारी चीजें भी हमने देखनी होती हैं। वो सारी चीजें ही अब हम कवर करने लगे हैं। ठीक है, क्लैब में लॉग इन कर लो। साथ के साथ एक दो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो थ्री पार्ट से रिलेटेड है। जो मेजर सोर्स हैं डेटा के, प्री प्रोसेसिंग, साथ में डेट लिखनी भी शुरू कर देते हैं। आज है जून 10। जो मेजर सोर्सेज हैं डेटा के, सबसे पहले हम यूज करते हैं कैगल, जो सबसे ज्यादा चलते हैं। यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते हैं, अब वहां से मनी वगैरह, प्राइस मनी वगैरह भी अर्न कर सकती हो। दूसरा है यूसीआई मशीन लर्निंग रेपोजिटरी। तीसरा हम लोग यूज करेंगे गूगल का, गूगल डेटा सेट सर्च। गूगल में डेटा सेट सर्च क्यों करते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें ज्यादा चलती हैं। अब समझते हैं इनको एक एक दो करके। सबसे पहले ये जो सबसे पहला लिंक है कैगल का, उसको कैसे करेंगे, पहले तो उसी को समझते हैं। जैसे कि हमने अभी तक जो काम किया है उसके अंदर हमने क्या किया, दो चीजें की है। एक तो डेटा सेट को डाउनलोड कर लिया,
डाउनलोड कर लिया। दूसरा क्या किया हमने हमने sklearn से या कहीं से उसको ऑनलाइन इंपोर्ट कर लिया। हम इसको क्या दूसरे को क्या बोल सकते हैं कि इंपोर्ट। जो तीसरा हम इम्पोर्टेंट काम करने लगे हैं आज, थर्ड एंड द इम्पोर्टेंट वर्क इज कि हम डेटा को एपीआईज के थ्रू डायरेक्ट लिंक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे मेमोरी शो होती है रिसोर्सेज के अंदर जाके। ठीक है, यहाँ पे ना मेमोरी रिसोर्सेज शो होंगे। अगर मान लो कि अपने रिसोर्सेज ही नहीं है अपने पास, तो हम इतनी मेमोरी में कहाँ रखेंगे डेटा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट लिंकिंग ही करेंगे उसके लिए। और वो डायरेक्ट लिंकिंग कैसे होगी वो अब देखेंगे आज। सबसे पहले क्या करना होता है, हमने हमने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक काम करना होता है छोटा सा, कि हम इसको जैसे कि numpy को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं थी इसके अंदर। क्यों नहीं इंस्टॉल करने की जरूरत थी इसके अंदर, क्योंकि numpy ऑलरेडी इसके अंदर इंटीग्रेटेड है क्लैब के साथ। पांडास भी क्लैब के साथ इंटीग्रेटेड है। पर क्लैब की कैगल के साथ ऐसी कोई इंटीग्रेशन नहीं है कि अपने आप वो सारी फाइल्स अपने आप उठा ले। तो कुछ भी हमने अगर इंस्टॉल करना है क्लैब के अंदर, तो कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर कोई भी फाइल हमने इंस्टॉल करनी है तो एक छोटी सी कमांड होती है उसकी। पहले तो सबसे पहले क्या करने लगे हम, इंस्टॉल इंस्टॉल कैगल। इंस्टॉल कैगल कैसे करेंगे, बस पिप लिख के pip इंस्टॉल कैगल, शिफ्ट एंटर। थोड़ा टाइम लगेगा, कैगल इंस्टॉल हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है अपने क्लैब के अंदर। अपने सिस्टम के अंदर नहीं इंस्टॉल हो रहा, ये याद रखना। अपने सिस्टम की कोई मेमोरी यूज नहीं हो रही। जो हमें यहाँ पे दी हुई है मेमोरी, यहाँ पे दी हुई है ना रैम और डिस्क, इसके अंदर यूज होगा ये। पर इसका फायदा क्या होगा, इतने बड़े बड़े जैसे कि यहाँ पे जो रैम है ये 12 GB की है। अगर मान लो हमने 22 GB का डेटा ही लेना है हमने, जैसे यहाँ पे हमें 100 GB की डिस्क दी हुई है, अगर हमने मान लो कि 500 GB का डेटा यूज करना है तो कैसे करेंगे। तो सीधा अगर एपीआई से हम उठाएंगे तो हमें यहाँ ये वाली मेमोरी हमारी फुल नहीं हो पाएगी, अदरवाइज ये वाली मेमोरी फुल होती रहेगी साथ में। ठीक है, ये काम कर लिया। उसके बाद हमने एक स्टेप्स हैं, फिक्स स्टेप्स हैं ये कॉन्फ़िगरेशन के। आपको पता ही है फाइल्स के टाइप होते हैं। जेसन फाइल को हमने इंपोर्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी बना लेंगे, मेक डायरेक्टरी पी। उसको उठाना है हमने कैगल से। ठीक है, देन आफ्टर कैगल, कैगल। and Then it's the third and last step.
ठीक है, ये 3 फिक्स्ड पेटेंटेड स्टेप्स हैं, ये हमें करने पड़ेंगे। रेपोजिटरी में प्रॉब्लम आ रही है। स्टॉप की कमी है यहाँ पर। जेसन कैनॉट स्टार्ट, क्या करो जेसन फाइल। चलो कोई नहीं, दूसरे तरीके से करते हैं हम। कैगल के ऊपर जाओ, करो साथ साथ स्टेप्स करो। कैगल के ऊपर जाओ, लॉग इन करो विद द सेम अकाउंट, जिस अकाउंट से आपने क्लैब के ऊपर लॉग इन किया हुआ है, वही सेम अकाउंट से यहाँ आप साइन इन करोगे कैगल से, ताकि वो लिंक हो सके। ठीक है, तो सिंपल सा स्टेप है कि साइन इन विद सेम अकाउंट कर लो, गूगल अकाउंट, अपने आप ही हो जाएगा लिंकिंग। ठीक है, ये हमने लिंक कर लिया। अब इसको चला के देखते हैं। अब इसकी एपीआई देखते हैं हम, यहाँ पर किसने एपीआई का लिंक क्या दिया हुआ है। बंद होगी, अच्छा। इसके ऊपर गए हम, अपने अकाउंट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे अपना अकाउंट खोलो आप लोग, खोलो ओपन करो, साथ साथ करते रहो। यहाँ पे नीचे जाओ, यहाँ पे आपको एपीआई की ऑप्शन मिलेगी। शायद न्यू अकाउंट बनने के कारण ये शो नहीं कर रहा है यहाँ पर।
यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, किसी की ऑप्शन आ रही है यहाँ पर? ये शायद न्यू काउंट के कारण नहीं आ रही एपीआई की ऑप्शन। चेक करके बताओ सारे। कोई भी डेटा खोलिए, मतलब जैसे एक खुलेगा। नहीं नहीं, सिर्फ पहले खोलना। डायरेक्ट हम डेटा सेट से ले रहे हैं एपीआई। यहाँ से हम ले लेंगे कॉपी एपीआई कमांड। ठीक, अब इसको यूज करके देखते हैं। नहीं, ये अकेला अकेला कनेक्ट हो रहा है, तो हमने अकेले अकेले को नहीं कनेक्ट करना, अपने अकाउंट को कनेक्ट करना है। रुको, मैं अपने पुराने अकाउंट में चेक करता हूँ कि वहां पे काम कर रहे हैं कि नहीं। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको चेक करके आपको दिखाएंगे कल दूसरे अकाउंट से। तो आपको स्टेप्स समझ लो कि स्टेप्स क्या है। कि यही कमांड्स होती हैं, जैसे यहाँ पर अपनी मिल जाती हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार ये चल पड़ा है यहाँ पर, है ना। उसके बाद हम जो एपीआई की अपनी कमांड है, यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे अपने अकाउंट से, उसको हम रन करेंगे। उसको रन करने के बाद थोड़ा टाइम लेता है ये डेटा को रीड होने में, अकॉर्डिंग टू द साइज। उसको रीड आउट वगैरह कर लेता है।
फिर उसके बाद हम बस इसको नॉर्मली जैसे हम अपने डेटा सेट है जैसे यूज करते हैं तो वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, एक यूट्यूब के ऊपर इसकी वीडियो देख लेना कि कैसे इसको लिंक करना है और करके देखना। बल्कि अब अभी ट्राई करो, अपने पास टाइम है, अभी अराउंड 40 मिनट्स हैं, ट्राई करो कैगल के साथ इसको लिंक करो, क्योंकि वेरियस प्रोजेक्ट्स वी हैव टू डू डायरेक्टली फ्रॉम द कैगल। करो इसको ट्राई, सभी ट्राई करो विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये देखो यहाँ पे क्लिक करना है, अकाउंट के अंदर गए, सेटिंग के अंदर गए, सेटिंग के अंदर जाके अकाउंट के अंदर जाके गए, यहाँ पे जाके हमने ये रहा एपीआई की ऑप्शन है ना, ये रही, इसके ऊपर जाके हमने न्यू टोकन क्रिएट करना है। इससे क्या होगा, एक जेसन फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये डाउनलोड होगी, उसके बाद के स्टेप्स भी बता रहे हैं। अब इसको इंपोर्ट कर लो क्लैप के अंदर, जो जेसन फाइल है अपनी। हो गया, एक बार और बताऊं? अच्छा, ये देखो कैगल के अंदर गए, ये है ना कैगल, कैगल ये रहा, ये कैगल है ना। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में चले गए, स्क्रॉल करो नीचे, लास्ट फोर्थ ऑप्शन है क्रिएट न्यू टोकन की, ये देखो क्रिएट न्यू टोकन फ्री है, कंफर्म करो क्रिएट न्यू टोकन, ये करो, टोकन जेसन फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ये डाउनलोड होगी जेसन फाइल। ठीक है, अब इसको हम लिंक करेंगे अपने क्लैब के साथ, क्लैब के अंदर जाओ, दोबारा साइन इन मांग किया रहा, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे अपनी जेसन फाइल। फाइल का नाम चेक कर लो, इजी हो जाएगा थोड़ा। कैगल जेसन ये पड़ी है अपने डाउनलोड्स के अंदर, इसके अंदर है ये रही, ये रीड नहीं कर पा रहा है इसको, इसको रीड भी करवाते हैं। अपनी नोटबुक के अंदर जाओ, ये वाली थी ना अपनी नोटबुक, इसके अंदर जाके इसके अंदर अपलोड करो। ठीक है, ये क्यों नहीं पहले उठा रहा था, क्योंकि हमने ये पिप इंस्टॉल कैगल उसके अंदर नहीं किया हुआ था, जो दूसरी क्लैब वाला पेज खुला था। ठीक है, ओके कर दिया हमने इसको, इसको लिंक कर लो अपनी लैब के उसके साथ, लैब के साथ ड्राइव के साथ लिंक कर लो, ताकि डेटा अपने पास हमेशा स्टोर रहे। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसको रन करके देखो, फाइल्स डॉट
तो लिंक नहीं। ठीक है, हो गया, ये कनेक्ट हो गया। अपलोड फाइल्स, ये यहाँ पे ऑप्शन दिया है। यहाँ पे अपलोड कर दो करो। अपनी एपीआई डाल दो यहाँ पर। ठीक है, ये एपीआई से के साथ कनेक्टेड हो गया। आपके कैगल के साथ ये देखो नाम आ गया ना यहाँ पर। यहाँ पे ईशदीप सिंगला नाम आ गया, यहाँ पासवर्ड उसने एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में अपने ले लिया। अब ये कनेक्टेड हो गया। ठीक है, ये फाइल्स इसने यहाँ से उठाई है। ये हमने किया है ना, फ्रॉम गूगल क्लैब इंपोर्ट फाइल्स। फाइल्स इंपोर्ट करके यहाँ किया। ये एक तरीका है, वो दूसरा तरीका था जिससे हम पहले कर रहे थे। ठीक है, ये कनेक्टेड हो गया। अब इसके बाद अब कैसे भी इसको यूज करते रहो। अगर न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप एक कमांड रन कर दो, इसके अंदर ही एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आप न्यू डायरेक्टरी रन कर दो। ये बन गई न्यू डायरेक्टरी। कहाँ पे बन गई है? root.kaggle फाइल एग्जिस्ट, तो इसलिए ये बन नहीं सकती, पहले एग्जिस्टेड है। ठीक है, देन आफ्टर
नेक्स्ट स्टेप था अपना एपीआई कॉपी करने का। Credential purposes. क्रेडेंशियल्स को हमने सेव करके रख लिया। ये अब परमिशन दे दी हमने। ये पहले हमने इकट्ठे किया था, सब अलग अलग करने पड़े। अब हमने देखने हैं कि कैगल के अंदर कंप्लीट डेटा स्टेप्स कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं। तो उसके लिए कमांड है अंडरस्कोर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कैगल डेटा सेट लिस्ट। तो ये सारी लिस्ट अपने पास आ गई जो जो उसके पास डेटा सेट्स हैं यहाँ पर। तो कोई भी डेटा सेट हमने उठाना है तो सिंपल बस उसका नाम लिखो, अपने आप वो लिंक हो जाएगा। इसके बीच में ये देखो, उसका नाम लिख दिया हमने, Enter कर देते हैं। अपने आप ये लिंक हो गया। ये 2 MB का डेटा सेट है, 100% सक्सेसफुली लिंकेज डन। ठीक है, बस इसको अनजिप कर लेना एक बारी, ताकि इसकी CSV फाइल आ जाए। जिप फॉर्मेट होते हैं ना, इसको अनजिप कर लिया हमने। ठीक है, ये आ गया अपने पास लोन का जिप फाइल और उसकी अनजिप फाइल। बस उसके बाद हमने क्या करना है, इसका वो बना लो डेटा सेट, डेटा फ्रेम पाइथन pandas। ठीक है, ये बन गया। अब इसको प्रिंट करा के देखना है, प्रिंट करा के देख लो। अकेला हेड प्रिंट करना है, अकेला हेड। ठीक है, ये डेटा सेट है लोन का, ये हमने कैगल से उठाया है। ये देखो, जो है इसका नाम है, ये कैपिटल कंपनी का भी डेटा सेट है लोन का। ये हमने इसे उठा लिया है, लगा लिया। एक दो और आप इसको ट्राई करना, इसके एक दो तरीके और हैं। शॉर्टकट से मैंने करने की कोशिश की, वो हुआ नहीं क्योंकि अकाउंट नया है।
नहीं तो सीधा ही एक स्टेप में भी हो जाता है, पर ये भी कोई बुरा नहीं है तरीका, इसको ट्राई करो। इसके ऊपर हम वेरियस ऑपरेशंस लगा लगा के देखेंगे, ठीक है। जैसे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए अगर आपको, कि इसकी कोई इंफॉर्मेशन आपने प्रिंट करवानी है, तो ऐसे प्रिंट हो जाएगी। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, नो नल है सारी वैल्यूज, नल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हेड वगैरह तो प्रिंट कराने की जरूरत नहीं, हमने कंप्लीट करवा के देख लिया इसको। ठीक है, बाकी डिस्क्राइब कर सकते हो आप उसको, डेटा सेट को, उसके वेरियस प्लॉटिंग वगैरह कर सकते हो आप। ठीक है, इसको शेयर भी कर देते हैं, अगर इसमें से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी देख लेना। ठीक है, कनेक्टिविटी होगी कैगल के साथ, और भी तरीके हैं इसको कनेक्ट करने के। अगर कैगल के साथ नहीं करना तो, या कैगल के साथ ही करना है तो। आई गेस आज के लिए इतना बहुत है, सफिशिएंट है। इसकी प्रैक्टिस करो, एक आधी चीज है कोई मैं करवा देता हूँ। बेसिक ये सब स्टेप्स तो आपको देखो हर एक में करनी पड़ेंगी, जिप कौन जिप में कन्वर्ट करना है ना, ये सारी चीजें जो है ये तो करनी पड़ेंगी आपको। इसका पासवर्ड सेव करना, चाहे इसको एक बार में करो चाहे अलग अलग करके करो। जो मेन था, मेन अपना मिसिंग था वो क्या था, कि यहाँ पर हम जब गए थे, अपने जेसन फाइल है, जब जेसन फाइल डाउनलोड करके यहाँ पे इसको उसका पाथ दे दिया। मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि डायरेक्ट वो आ नहीं रहा, वो शायद इन्होंने चेंज कर दिया, वो कुछ अपग्रेड कर दिया। ठीक है, नए अकाउंट्स के अंदर, नहीं तो वहां पे सीधा ही फाइल ये डाउनलोड हो जाती है, जस्ट हमने लिंक डायरेक्टरी के साथ कॉपी करना होता है। ये वाला भी कोई बुरा नहीं है, ये भी सही है। जेसन फाइल के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया अपनी क्लैब को कैगल के साथ। अब इसमें से कोई ऐसा डेटा उठाएंगे हम जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज है, ताकि हम देख सके कि मिसिंग वैल्यूज को कैसे करना होता है हैंडल। देखते हैं कौन सा डेटा है जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज काफी ज्यादा हैं। इसका लिंक भी सेंड करना रह गया, यस, एक मिनट में करता हूँ। आज टॉपिक्स काफी वेरियस टॉपिक्स थे।
हाँ, इसमें देख लो रजत, इसमें सारा दे दिया डिटेल में। बेसिक स्टेप्स हैं, कोई इन्हें याद रखने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। वंस इन ए टाइम हमें ये करना पड़ता है ना। ऐसे नहीं है कि आपको लर्न करने हैं, बाय हार्ट करने हैं। आप चैट जीपीटी से या गूगल की हेल्प से भी ले सकते हो। एक बार एक लैब को हमने एक बार लिंक करना है, उसके बाद तो हमने कॉपी पेस्ट ही करना होता है बार बार। मेन चीज है वो कोडिंग, जो टेक्निक है, जो मेथड्स आप यूज कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। एक छोटा सा टॉपिक है लेवल एंड कोडिंग का, कल सुबह ही करेंगे फ्रेश माइंड। तब तक ये चीजें आप समझ लो जो आज हमने की है। एक तो एसक्यूएल लर्न, कि इसको कैसे यूज करना है, इसकी कैसे यूज करनी है, ताकि आपका हाथ ना रुके। ठीक है। दूसरा, आपने लिंकिंग कैसे करनी है इन सबकी, यहाँ पे हमने मेंशन की हुई है। एक तो यूसीआई की, एक कैगल की। ये कैसे, यहाँ से कैसे इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, डेटा सेट को। कल को हम प्री प्रोसेसिंग कंप्लीट करके मॉडल स्टार्ट कर देंगे, बस फिर प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर देंगे। ठीक है।